بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا نام ارباب ہے۔ میں ایک مڈل کلاس فیملی سے تعلق رکھتی ہوں۔ 4 بہنیں، 2 بھائی۔ امی ابو ہم ایک نارمل زندگی گزار رہے تھے۔ ابو کی کریانے کی دکان تھی، گزر بس ٹھیک ہو جاتا تھا۔ 4 بہنیں بڑی تھیں اور بھائی سب سے چھوٹے۔ باقی بہنیں بھی خوبصورت تھیں مگر میرا رنگ روپ سب سے الگ تھا۔ میں نے ابھی انٹر ہی کیا تھا کہ رشتے آنا شروع ہو گئے۔ باقی بہنیں ابھی پڑھ رہی تھیں۔ کچھ عرصہ تو اماں نے کسی کو بھی مثبت جواب نہیں دیا، مگر پھر ایک دن اماں کی ایک سہیلی کی بیٹی کی شادی تھی۔ اماں ہم سب بہنوں کو وہاں لے گئیں۔ بارات کے استقبال کے لیے اماں کی سہیلی نے ہمیں پھولوں کی پلیٹیں پکڑا کر داخلی مہمانوں کے استقبال کے لیے کھڑا کر دیا۔ آنٹی کی یہ اکلوتی بیٹی تھی، کوئی بہن نہیں تھی، اس لیے انہوں نے بطور خاص مجھے ہدایت کی کہ بیٹا مہمانوں کا خاص خیال رکھنا۔ یہ امی کی بچپن کی دوست تھیں، اس لیے ہم ان کے بچوں کی طرح تھے۔ میں مہمانوں کے اوپر پھول پھینک رہی تھی۔ ایک لڑکا جس کی عمر 26 سال تھی، بہت سنجیدہ طبیعت اور خوبصورت جوان، جیسے ہی وہ میرے قریب سے گزرا پیچھے سے کسی بچے نے مجھے دھکا دے دیا اور میں بری طرح سے اس سے ٹکرا گئی۔ اس نے فوراً مجھے تھام لیا۔ میں گرنے سے تو بچ گئی مگر شرمندہ بہت ہوئی۔ کچھ دوستوں نے ہوٹنگ کر دی۔ میرا پاؤں بری طرح مڑ چکا تھا۔ میری ہیل سلپ ہونے کی وجہ سے میری آنکھوں میں تکلیف اور شرمندگی سے آنسو آ گئے۔ اس نے فوراً ہی میرا ہاتھ پکڑ کر مجھے قریب ہی پڑی کرسی پر بٹھا دیا۔ وہ بہت ہی شریف اور سلجھا ہوا لگتا تھا۔ اس نے جلدی سے پانی کی بوتل اٹھا کر مجھے کھول کر دی اور کہنے لگا، کوئی بات نہیں، آپ کی غلطی نہیں ہے، کسی بچے نے شرارت کر دی ہوگی۔ اتنے میں کسی نے امی اور ان کی سہیلی کو بھی اطلاع کر دی کہ رباب آپی پھسل گئی ہیں اور ان کے پاؤں میں موچ آ گئی ہے۔ وہ دونوں فوراً دوڑی چلی آئیں۔ امی نے اس نوجوان کا شکریہ ادا کیا۔ آنٹی جب اس سے ملی، امی کو بتانے لگی کہ یہ دلہا کا کزن ہے جو اسلام آباد سے آیا ہے۔ آنٹی نے کہا، بیٹا کوئی بات نہیں، زیادہ نقصان سے بچت ہو گئی۔ پھر آنٹی تو باراتیوں کے ساتھ مصروف ہو گئی، جبکہ امی خاصی فکر مند تھی کیونکہ پاؤں میں درد تھا اور مجھ سے چلا نہیں جا رہا تھا۔ امی نے میری چھوٹی بہن کو بلایا اور پھر مجھے لے جا کر ایک ٹیبل پر بٹھا دیا اور بہنوں کو کہا کہ آپی کے ساتھ ہی بیٹھے رہنا۔ خود امی اپنی دوست کے ساتھ شادی کے انتظامات دیکھنے لگی۔ میرے لیے وہاں بیٹھے رہنا بہت مشکل تھا کیونکہ مجھے بار بار احساس ہو رہا تھا کیونکہ لڑکا چھپ چھپ کر مجھے ہی دیکھ رہا تھا۔ میں بہت پزل ہو رہی تھی۔ میں نے سی گرین کلر کا بہت خوبصورت فراک پہنا ہوا تھا جس پر گولڈن کام ہوا تھا اور میں نے اپنے لمبے بال کھولے رکھے تھے۔ کچھ میک اپ کا کمال تھا۔ بہت سے لوگوں نے بڑی گہری نظروں سے مجھے دیکھا۔ کئی خواتین کی نظروں میں میرے لیے پسندیدگی تھی۔ خیر، شادی ختم ہونے تک میری بہنیں میرے پاس ہی موجود رہیں۔ رخصتی کا شور اٹھا تو سبھی لوگوں کی توجہ اس طرف ہو گئی۔ اب وہ لڑکا بارات کے ساتھ نکلتا ہوا ہماری ٹیبل پر آ کر رک گیا۔ امی آنٹی کے ساتھ دلہن کی رخصتی کروا رہی تھی۔ میری بہنیں بھی دلہن کے قریب سے دیکھنے کے شوق میں جلدی جلدی اس کی طرف چلی گئیں۔ وہ نوجوان میری ٹیبل پر کچھ دیر رکا اور پھر شائستگی سے پوچھا، آپ کے پاؤں کی موچ کیسی ہے، بہتر ہوئی یا نہیں؟ میں نے کہا، جی کچھ بہتر لگ رہی ہے۔ اس نے کہا، میرا نام حارث ہے، اسلام آباد ہوتا ہوں۔ اصلان میرا خالہ زاد ہے، اس لیے خاص طور پر اس نے مجھے شادی میں بلایا ہے۔ میں گردن نیچے کیے اس کی بات سن رہی تھی۔ اچانک اس نے کہا کہ آپ برا نہ مانیں تو آپ کا نام معلوم کر سکتا ہوں؟ میں نے ایک دم گھبرا کر اس کی طرف دیکھا۔ میری زندگی میں پہلی مرتبہ تھا کہ کوئی اجنبی مجھ سے بے تکلف ہونے کی کوشش کر رہا تھا۔ میں نے گھبراتے ہوئے کہا کہ جی میرا نام رباب ہے۔ آنٹی زکیہ میری امی کی بچپن کی سہیلی ہیں۔ کرن دلہن میری دوست ہے، اس کی کوئی بہن نہیں، اس لیے آنٹی نے مجھے بلایا تھا کہ رسموں میں ان کی مدد کروا سکوں، مگر پاؤں میں موچ آ گئی تو کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ اس نے مسکرا کر کہا، کوئی بات نہیں۔ کہنے لگا، اچھا میں چلتا ہوں، اپنا خیال رکھیے گا۔ تھوڑی دیر میں مہمان رخصت ہونے لگے اور مسئلہ یہ تھا کہ ہمیں لینے کے لیے تو آنٹی انکل کو بھیج دیا گیا تھا، مگر اب جانے کا مسئلہ ہو رہا تھا۔ پہلے یہ پروگرام تھا کہ ہم کوئی رکشہ کروا کر چلے جائیں گے، مگر اب مجھ سے تو چلا ہی نہیں جا رہا تھا۔ آنٹی امی کو کہہ کر کہ مریم تم پریشان مت ہو، میں کسی سے کہتی ہوں، وہ تم لوگوں کو گھر کے دروازے پر چھوڑ آئے گا۔ اتنی دیر میں حارث جلدی جلدی واپس آ گیا۔ یوں لگتا تھا جیسے اس کو راستے میں کچھ یاد آیا تو اور وہ لینے آیا ہو۔ اس نے زکیہ آنٹی سے آتے ہی کہا، آنٹی ازلان نے کہا ہے کہ بھابھی کا کوئی قیمتی گفٹ ہے، وہاں سٹیج پر ٹیبل پر ہی رہ گیا ہے، شاید کوئی گولڈ کی چیز ہے، پلیز آپ ڈھونڈ کر مجھے دے دیں، میں اپنی گاڑی میں راستے سے واپس آیا ہوں۔ آنٹی نے فوراً جا کر ٹیبل پر دیکھا تو واقعی ایک گفٹ رکھا تھا جو اس کو امی نے شادی پر دیا تھا۔
امی نے ایک نازک سا بریسلیٹ بنوایا تھا کرن کے لیے، شکر ہے کسی اور کی نظر نہیں پڑی تو وہ مل بھی گیا۔ اب آنٹی نے حارث سے کہا، بیٹا تم آ تو گئے ہو، ذرا میری دوست اور بچیوں تک کو چھوڑ دو، تمہارے انکل مصروف ہیں، ورنہ وہی چھوڑ آتے۔ پر اس کو تو گویا دل کی مراد مل گئی ہو، اس نے خوشی خوشی میری طرف دیکھا اور کہا، ضرور آنٹی میں چھوڑ دوں گا۔ امی بھی اس کو دیکھ کر کافی خوش تھیں، اس کی پرسنالٹی کچھ ایسی تھی۔ میری بہن مجھے لے کر باہر آ گئی، آنٹی اور امی بھی آ گئیں۔ اب مسئلہ یہ تھا کہ ہم 4 بہنیں اور ایک امی تھی، اگر میں پیچھے بیٹھتی تو تکلیف ہوتی۔ ویسے تو میری بہنیں کافی کمزور تھی، مگر امی نے کہا، بیٹا تم آگے ہی بیٹھ جاؤ، بیٹھنے اور اترنے میں آسانی ہوگی۔ میرے گال تپش سے لال ہو رہے تھے اور اس کی پر اشتیاق نظریں میرے چہرے پر گڑی تھی۔ میں مجبوراً فرنٹ سیٹ پر بیٹھ گئی۔ امی حارث کو راستہ بتا رہی تھی، سارے راستے وہ امی سے باتیں کرتا، امی بھی اس سے جلد ہی گھل مل گئی تھی۔ جیسے ہی گھر کا دروازہ آیا وہ فوراً باہر نکلا۔ پہلے اس نے بڑے ادب کے ساتھ امی کے لیے دروازہ کھولا، پھر چھوٹی بہنوں کے اور سب سے آخر میں میرے لیے۔ باہر نکلنے کے لیے میں نے بہنوں کی طرف دیکھا تو اس نے ایک دم سے اپنا ہاتھ آگے بڑھا دیا۔ میں نے ایک لمحے کو سوچا اور پھر چپ چاپ اس کا ہاتھ تھام کر باہر آ گئی۔ سفر کے دوران مسلسل مجھے دیکھ رہا تھا مگر اس نے کہا کچھ بھی نہیں۔ دوسرا، اس کی باتوں سے معلوم ہوا کہ وہ کافی اچھی نیچر کا ہے۔ امی نے اسے اصرار کیا کہ بیٹا چلو دروازے تک تو آ گئے ہو، چائے پی کر جانا۔ ایک بار تو اس نے انکار کر دیا، لیکن پھر امی کے کہنے پر اس نے اپنے کسی کزن کو فون کیا اور کہنے لگا کہ تم خالہ کو بتا دینا کہ مجھے آنے میں تھوڑی سی دیر ہو جائے گی۔ مجھے اب تھوڑا سا غصہ آ رہا تھا مگر میں خاموشی سے اندر چلی گئی۔ ادھر جاتے ہی میں اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ ابو گھر پر تھے، مجھے باہر سے ابو کے بولنے کی آواز آ رہی تھی۔ امی اس کا تعارف کروا رہی تھی۔ کچھ دیر میں چائے پی کر وہ جانے کے لیے کھڑا ہو گیا۔ میں کمرے میں ہی سب سن رہی تھی۔ جب مجھے لگا کہ وہ جا چکا ہوگا میں نے اپنی کھڑکی کا پردہ ہٹا کر باہر جھانکا۔ وہ گاڑی میں بیٹھا تھا اور گھر کی طرف ہی دیکھ رہا تھا۔ جیسے اس کی نظر مجھ پر پڑی وہ میری طرف دیکھ کر مسکرایا اور سر سے اشارہ کیا۔ میں فوراً پیچھے ہٹ گئی۔ ساری رات میں اسی کے بارے میں سوچتی رہی۔ اس نے جب میرا ہاتھ تھاما تھا بار بار وہ لمحہ مجھے یاد آ رہا تھا۔ مجھے شاید وہ پسند تھا، میرے ساتھ ایسا پہلے کبھی نہیں ہوا تھا، اس لیے ذہن کو جھٹکنے کی کوشش بھی کرتی تو ناکام ہو رہی تھی۔ جانے کب میں سو گئی۔ ولیمہ ایک دن چھوڑ کر تھا۔ ولیمے کے لیے امی نے میرے لیے گولڈن کلر کا خوبصورت سا فراق بنایا تھا۔ میری تینوں بہنیں بہت پیاری لگ رہی تھیں۔ میرا پاؤں بھی کافی ٹھیک ہو گیا تھا۔ مجھے ہیل پہننے کا شوق تھا مگر اپنے پاؤں کی وجہ سے اب میں نے گولڈن کام کے بہت پیارے سے خود سے پہن لیے۔ ہم تیار ہو کر انکل کے انتظار کرنے لگے۔ ہال میں پہنچ کر میری پہلی ہی نظر حارث پر پڑی جو سٹیج پر دلہا بھائی کے ساتھ تصاویر بنوا رہا تھا۔ اس کی نظر بھی مجھ پر پڑی۔ وہ مجھ کو دیکھ کر مسکرایا۔ میں ادھر ادھر دیکھنے لگی۔ سٹیج پر جب ہماری تصویر بن رہی تھی تو وہ بہانے سے سامنے آ کر دلہن کی تصویر لینے لگا۔ آج بھی ولیمہ ختم ہونے کے بعد اس نے امی سے کہا کہ میں آپ کو چھوڑ دیتا ہوں۔ میں دلہن سے ملی، اس سے بات کر کے پتہ لگا کہ دلہا بھائی اور اس کی فیملی بہت ہی اچھی نیچر کے ہیں۔ میری دوست بہت خوش تھی، میں بھی دل سے اس کے لیے خوش تھی۔ گھر پہنچ کر امی اس کے ساتھ ڈرائنگ روم میں بیٹھ کے امی نے مجھے کہا کہ رباب بیٹا جاؤ چائے بنا لو۔ مسکراتی ہوئی نظروں سے مجھے ہی دیکھ رہا تھا۔ میں چائے بنا کر کمرے میں آ کر جیولری اور میک اپ صاف کر رہی تھی۔ اتنے میں وہ جانے کے لیے نکل گیا۔ میں نے اس کو کھڑکی سے چھپ کر دیکھنا چاہا مگر وہ کھڑکی کی طرف ہی دیکھ رہا تھا۔ اس نے آج میری طرف ہاتھ ہلا دیا۔ میں بری طرح پزل ہو گئی۔ شادی کو 2-3 دن گزرے تھے کہ امی چپکے چپکے اپنی دوست سے کچھ باتیں کرنے لگی۔ میں نے جب پوچھا تو امی نے مجھ سے کہا کچھ نہیں۔ ایک دن اچانک حارث اپنی امی بھابھی اور آنٹی زکیہ کے ساتھ ہمارے گھر آ گیا۔ حارث کی امی مجھے دیکھ کر بہت خوش تھی۔ اب میں سمجھی کہ امی کیا راز و نیاز کرتی رہتی تھی۔ ابو کو بھی سب معلوم تھا۔ وہ سب لوگ رشتہ ڈالنے آئے تو بات تقریباً طے ہو گئی۔ لڑکے کی ساری معلومات ابو چیک کروا چکے تھے اور اس طرح حارث کی امی اسی دن میرے ہاتھ میں نازک سی ہیرے کی انگوٹھی ڈال گئی۔ حارث آرکیٹیکٹ تھا اور دبئی میں کسی پروجیکٹ پر کام کر رہا تھا۔ بہت کھاتا پیتا گھر تھا مگر سادگی پسند تھے۔ میں حیران پریشان تھی کہ یہ ایک دم سے کیا ہوا، لیکن میرے دل میں بہت سکون تھا کیونکہ پہلی ہی نظر میں وہ مجھے پسند آ گیا تھا۔ اور اس کی بھابھی کے تاثرات بہت ہی عجیب تھے۔ وہ جیسے زبردستی مسکرا رہی تھی۔ اس کے چہرے پر ایک پسندیدگی تھی جس کو میں نے اپنا وہم سمجھ کر ٹال دیا۔ لڑکے والوں کو ہماری مالی حیثیت کا اندازہ تھا، اس لیے انہوں نے سختی سے منع کیا کہ کسی جھمیلے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ ابا اس بات پر خوشی سے نہال تھے۔ انکل بھی بہت اچھی نیچر کے تھے۔
6 माह बाद हमारी शादी की तारीख तय करके वो लोग चले गए। ये तो चट मंगनी और पट ब्याह वाली बात हो गई। अम्मी सारा दिन मार्केटों में चक्कर लगाती। जहेज में तो कुछ नहीं बनाना था, मगर अम्मी ने मेरे लिए कपड़े, जेवर और हारिस के घर वालों के लिए तोहफे, तोहफे और कपड़े जरूर बनाए। सभी कुछ बहुत खुश उसलूबी से हो रहा था। हारिस दुबई से अक्सर कॉल करता। उसने शादी से 15 दिन पहले 2 माह की छुट्टियों पर आना था। हम दोनों बहुत खुश थे। शादी में अब सिर्फ 25 दिन बचे थे। एकदम से मेरी तबीयत खराब होना शुरू हो गई। मुझे लगता है जैसे कोई मेरे साथ चल रहा है। अगर मैं कहीं बैठी होती तो मुझे लगता कोई मुझे घूर कर देख रहा है। सोते वक्त भी मुझे लगने लगा जैसे कोई और भी बिस्तर पर लेटा हो। नींद में मुझे नजर आता कि जैसे कोई अजीबो गरीब पहाड़ी इलाका है, वहां पर मैं नंगे पांव सर दौड़ रही हूँ। मेरे पीछे एक खतरनाक चेहरे वाली औरत भाग रही है। कभी मुझको ढेर सारा खून नजर आता, कभी गोश्त नजर आता। मेरी तबीयत में सुस्ती और चिड़चिड़ापन आने लगा। मैंने सब अपनी अम्मा से नहीं कहा। मुझे लगा शायद नींद पूरी ना होने की वजह से हो रहा हो। दूसरा, मैं जब इस बारे में किसी से बात करने की सोचती तो बोल ही नहीं पाती। मेरे सर के बाल गिर रहे थे। मुझे कभी तेज बुखार हो जाता, कभी सर दर्द। मैं कोशिश करती कि अपनी नमाज पूरी पढूं, मगर कोताही हो जाती। एक दिन गली में एक फकीर आया। उसने सदा लगाई कोई भूखे को खाना खिलाने वाला। मैं फौरन उठकर किचन में गई। 2 रोटियां प्लेट में रखी, सालन रखा और पानी का गिलास लेकर जल्दी जल्दी दरवाजे पर गई। वो निहायत बूढ़ा शख्स था। उसने रोटी मेरे हाथ से ली, मेरे सर पर हाथ रखा और कहा, बेटा, मुश्किलें कितनी भी बड़ी हों, रास्ते इंसान के कदमों के नीचे होते हैं। हर खुशी के साथ दुख है और हर दुख के साथ खुशी। घबराना नहीं, तेरा दिल रोशन है। फिर मुझे एक तस्बीह दी और कहने लगा, रात को नींद नहीं आती? मैं जो चुप खड़ी थी, मैंने गर्दन हाँ में हिला दी। कहने लगा, ये तस्बीह संभाल कर रखना। खुशी मिल जाए तो दुख को मत भूलना, और दुख मिल जाए तो खुदा को मत भूलना। जब जब परेशान हो इस तस्बीह पर दुरूद शरीफ पढ़ा करो। और फिर सदा लगाता हुआ चला गया, भला हो, भला हो, भला हो, भला। मैं हैरान खड़ी उसकी तरफ देख रही थी। जहां वो गया था फिर अपने हाथ की तरफ देखा। एक हाथ में खाली बर्तन, एक हाथ में तस्बीह। मैं चुप करके दरवाजा बंद करके अंदर आ गई। मेरे दिल ने कहा, मुझे ये तस्बीह संभाल कर रखनी है। मैंने नमाज की पाबंदी शुरू कर दी। मेरी तबीयत एकदम से संभल गई। अम्मी मुझको नमाज पढ़ता देखती तो खुश होती और कहती, बेटा हरकत वाला होता है। और घर जहां पर औरत नमाज पढ़कर अपना काम काज करती है, मेरी नसीहत है हमेशा कोशिश करना नमाज पढ़ना, बड़ों से अदब से पेश आना, शौहर का ख्याल रखना और कोशिश करना कि दिल जीत के अपनी जगह बनाओ, कोई साजिश करके नहीं। अम्मी की बात सुनकर मुस्कुरा दी। मैंने कहा, अम्मी आप फिक्र मत करें, मैं आपकी बेटी हूँ, कभी भी कोई आपकी तरबियत पर बात नहीं करेगा। अम्मी खुश हो जाती। मेरी शादी बहुत कम उम्र में हो रही थी और मुझे इस बात का एहसास भी था कि मुझे अभी पूरी तरह घरदारी नहीं आती। मेरी अम्मी ने कहा, तुम्हारी सास अच्छी औरत है, जो काम भी तुम्हें समझ ना आए उससे मशवरा करके कर लिया करना। यूं शादी करीब आ गई। हारिस भी पाकिस्तान आ गया था। तय ये पाया था कि शादी से 3 दिन पहले ही वो अपनी खाला के घर रहने आ जाएंगे। रुखसती सीधी इस्लामाबाद होगी। हारिस ने जोर दिया कि मेहंदी की रस्म मुश्तरका होगी। मेरे अब्बू सीधे आदमी थे। पहले तो उन्होंने कहा कि लोग क्या कहेंगे, फिर अम्मी के समझाने पर राजी हो गए। शादी में 10 दिन बचे थे। मैं पार्लर गई तो तस्बीह को अलमारी में रख गई। पार्लर से वापस आते हुए जिस रिक्शा में मैं आ रही थी, उसकी जोरदार टक्कर एक गाड़ी में लगी और अच्छा खासा नुकसान हुआ। मैं उसी साइड पर बैठी थी, मगर मौजज़ाना तौर पर मुझे खराश भी नहीं आई। मैं बदहवासी सी नीचे उतर आई। मेरी छोटी बहनें मेरे साथ थी। उसके पाँव में शदीद चोट लगी। मैंने घर फोन किया। गाड़ी वाला मेरी बहन को लेकर हॉस्पिटल आ गया। साथ में अब्बू भी पहुंच गए। उसने बहुत माजरत की। अब्बू ने कहा कि कोई बात नहीं, हो जाता है। तिब्बी इमदाद के बाद हम लोग घर आ गए। मुझे फिर लगने लगा कि जैसे कोई मेरे पीछे पीछे चल रहा है। मैंने नमाज पढ़ी, तस्बीह ढूंढी तो नहीं मिली। मैंने अम्मी से पूछा, बहनों से पूछा, किसी ने भी वो तस्बीह नहीं देखी थी। अम्मी कहने लगी कि कोई बात नहीं बेटा, दूसरी तस्बीह ले लो। अब मैं चुप हो गई। मैं नहीं बताना चाहती थी कि वो तस्बीह मुझे कोई फकीर देकर गया है। मैंने दूसरी तस्बीह पर दुरूद शरीफ पढ़कर दुआ मांगी कि या अल्लाह, मुझे अपनी पनाह में रखना, मेरे प्यारों को अपनी पनाह में रखना। वो चीज़ें जो हम नहीं जानते तू जानता है। मैं काफ़ी देर बैठी रही। हारिस को भी मालूम हो गया था कि एक्सीडेंट में समन को चोट लगी है। वो भी फिक्रमंद था। अम्मी भी परेशान थी। मैं दिल ही दिल में सोच रही थी काश वो बाबा फकीर फिर से आ जाए, मगर ऐसा नहीं हुआ। 3 दिन पहले वो अपनी खाला के घर पहुंच गए। हाल में मेहंदी का फंक्शन रखा गया। मुझे अपने आसपास कोई अजीब सी बदबू महसूस हो रही थी, जिसको मैं नज़रअंदाज करती रही। यूं लगता जैसे कोई गोश्त सा जल रहा हो। मुझे अच्छा महसूस नहीं होता था।
मगर मैं बर्दाश्त करती रही। मेहंदी के फंक्शन में भी बहुत प्यारी लग रही थी। अम्मी ने मेरे चेहरे पर घूंघट डाला हुआ था और उसने बहुत कोशिश की कि वो मेरा चेहरा देख ले, मगर उसकी अम्मी ने और मेरी अम्मी ने कहा कि नहीं, ये निकाह के बाद ही होगा, जिस पर उसका अच्छा खासा मुंह बना हुआ था। उसकी भाभी बड़ी खुशदिली से पेश आ रही थी, लेकिन मुझे महसूस होता था कि जब वो मेरी तरफ देखती है तो उसकी आंखों में एक तपिश जाग उठती है। मैं दिल ही दिल में दुआ करती रही कि सब ठीक रहे, और ऐसा ही हुआ। मेहंदी की रात कोई नहीं सोया। सुबह के करीब सब अपने अपने ठिकानों पर चले गए। हमें छोड़ने के लिए अब्बू ने गाड़ी का बंदोबस्त कर रखा था। अगला दिन मेहंदी आर्टिस्ट ने सारा दिन लगाकर बहुत ही खूबसूरत मेहंदी लगा दी। जैसे ही वो मेहंदी लगाकर फारिग हुई, एकदम से मुझे लगने लगा कि जैसे मेरी मेहंदी मुझे जला रही है। मैंने कुछ देर बर्दाश्त की, मगर जब बर्दाश्त नहीं हुआ तो मैं चिल्ला उठी। मेरी अम्मी ने जल्दी जल्दी मेहंदी धोई। मेहंदी वाली भी परेशान थी क्योंकि वो बहुत पुरानी आर्टिस्ट थी। मेरे हाथ, पांव और बाजू बुरी तरह से सुर्ख हो चुके थे। जलन के मारे मेरी आंखों से आंसू निकल रहे थे। मेरी दोस्त और रिश्तेदार भी परेशान थे क्योंकि शुगन के लिए जो मेहंदी घोली जाती है उसको बचाकर एक ना एक लड़की को लगा दिया था। ये हमारे यहाँ रस्म है कि दुल्हन की बची हुई मेहंदी से जिनको मेहंदी लगती है उसकी शादी जल्द हो जाती है। किसी भी लड़की को एलर्जी नहीं हुई, सब ठीक थे। अम्मी कहने लगी कि शायद मुझे इस ब्रांड से एलर्जी हो गई हो। मैं चुप रही। रंग बहुत गहरा आया था। अम्मी ने चंदन का लेप बनाकर फौरन मुझे लगा दिया। मुझे कुछ याद आया तो मैंने लेप पर दुरूद शरीफ पढ़ना शुरू कर दी। फौरन मुझे ठंडक का एहसास हुआ। मैं समझ गई थी कि मेहंदी खराब नहीं थी। पार्लर वाले वाकये के बाद अम्मी डरी हुई थी। रुखसती सादगी से होनी थी और हमारा घर काफी बड़ा था, इसलिए दोनों खानदानों ने फैसला किया कि रुखसती घर से ही होगी। निकाह के लिए मेरे कजनों ने बहुत ही खूबसूरत सा स्टेज घर के आंगन में बना लिया था। मेकअप वाली भी घर आ गई थी, इसीलिए सभी कुछ खुश उसलूबी से होता गया। मुझे निकाह के लिए लाकर बिठा दिया गया। जैसे ही हारिस की भाभी मेरे करीब आई, उसने मेरा हाथ पकड़कर मेहंदी देखी और कहा, रंग तो बहुत गहरा चढ़ा है। मुझे महसूस हुआ कि जैसे उसके लहजे में हैरत थी। शरारत से कहने लगी, क्या सारी रात लगा कर रखी थी मेहंदी? मैंने सर हिला दिया। निकाह के बाद बहुत अच्छे तरीके से सारी रस्में हुई। हारिस ने आईने में मेरा चेहरा देखा। मेरी दोस्त किरण और दुल्हा भाई भी बहुत खुश थे। सबने मिलकर हमें निकाह की मुबारकबाद दी और जिंदगी के नए सफर के लिए ढेर सारी दुआएं दी। यूं अपने माँ बाप की दुआओं को लेकर कराची से बाय एयर इस्लामाबाद आ गई। घर में सबने भरपूर तरीके से मेरा इस्तकबाल किया। शादी का कमरा हारिस के एक दोस्त ने डेकोरेट करवाया था, जो इसीलिए निकाह में शरीक नहीं हुआ। घर काफी बड़ा, खूबसूरत और फर्निश्ड था। दिल में खुदा का लाख लाख शुक्र अदा कर रही थी कि उसने मुझे इतनी अच्छी फैमिली में जगह दी। मैं अपने कमरे में अकेली बैठी थी और उसकी भाभी दूध का गिलास रख कर जा चुकी थी। अचानक मुझे लगा जैसे कोई मेरे कमरे में कूदा हो, जबकि ऐसा नामुमकिन था। मैंने घूंघट ओढ़ा हुआ था, इसलिए इधर उधर देखा मगर कोई दिखाई नहीं दिया। मैं सीधी होकर बैठी। अचानक से एक बहुत बड़ी बिल्ली मेरे ऊपर झपट पड़ी। उसका निशाना सीधा मेरा चेहरा था। हालांकि मेरा चेहरा घूंघट में था, मगर पता नहीं कैसे फिर भी उसके पंजों से मेरे चेहरे पर शदीद खराश पड़ी। मैंने बहुत बड़ी चीख मारी। सब लोग भागकर मेरे कमरे में आए। तब तक वो बिल्ली मुझे और भी जख्मी कर चुकी थी। कैसी बिल्ली थी जो इतनी दलेरी से एक इंसान पर हमला कर रही थी। जैसे ही दरवाजा खुला वो बिल्ली खिड़की से भाग गई। जो और भी हैरत अंगेज बात थी कि हम ऊपर की मंजिल पर थे। शीशा तोड़कर कैसे भाग सकती थी, मगर वो शीशा तोड़कर ही भागी थी। मैं तकलीफ से चिल्ला रही थी। हारिस भागकर मुझ तक पहुंचा। जैसे ही उसने मेरा दुपट्टा पकड़कर उतारा, मेरे पूरे मुंह पर बिल्ली के पंजों से खुरचने की वजह से जख्म देखकर गुस्से से चीख उठा। ये बिल्ली कमरे में कैसे आ गई? मेरी सास घबरा के आगे बढ़ी और कहने लगी, इन बातों को छोड़ो, दुल्हन को फौरन हॉस्पिटल लेकर चलो, ये तो बहुत जख्मी हो गई है। हारिस और हारिस की अम्मी मुझे लेकर फौरन हॉस्पिटल चले गए। ड्यूटी डॉक्टर ये सब देखकर हैरान रह गई कि दुल्हन पर कोई बिल्ली भी इतना खतरनाक हमला कर सकती है। मेरे चेहरे का एक हिस्सा बुरी तरह जख्मी हो गया था। उन्होंने फौरन मुझे इंजेक्शन लगाए, जख्म साफ किए। जख्मों में अजीब तरह की जलन हो रही थी। मेरे हाथों पर लगे हुए जख्म साफ करने के लिए फौरन ही मेरी चूड़ियां उतार दी गई थी। मेरी जिंदगी की ये यादगार रात थी जो मेरे लिए किसी हादसे में बदल गई थी। मैं मुसलसल रोए जा रही थी। मेरी सास बहुत परेशान थी, बार बार अजीब सी नजरों से मेरी तरफ देख रही थी। हारिस हौसला दे रहा था, तसल्ली दे रहा था, मगर मेरा दिल कर रहा था कि मेरी सास मुझे तसल्ली दे। वो जैसे ही मेरे पास आकर खड़ी हो, मैंने उनका हाथ पकड़ा, उनसे लिपट कर रोने लगी। तो एकदम उनको भी एहसास हुआ। उन्होंने कहा, बेटा परेशान मत हो,
कोई बात नहीं, जल्दी ठीक हो जाओगे। हम 2-3 घंटे बाद घर वापस आ गए। एक दो रिश्तेदार खातीन जो रात को घर पर ही रुक गई थी, वो मुझे देखकर दबी आवाज में एक दूसरे से कहने लगी। हारिस की भाभी तेजी से आगे बढ़ी, कहने लगी, अरे देखो तो सही, मेरी इतनी प्यारी देवरानी का क्या हाल किया उस बिल्ली ने। शायद वो जंगली बिल्ली थी, किसी बात में गुस्से में आ गई थी। शायद वो रूम डेकोरेट करने वाले से गलती से वो कमरे में बंद हो गई हो, इसलिए उसने इतनी शिद्दत से तुम पर हमला किया। कोई बात नहीं, तुम जल्दी ठीक हो जाओगी, परेशान मत हो। और वो मुझे कमरे में ले गई। मैंने अपने कानों से रिश्तेदार औरतों की ये बात सुनी कि शायद ये लड़की आसेबज़दा है, इस पर किसी बद्दुआ का साया है, वरना आज तक हमने ऐसा ना देखा ना सुना। एक औरत कहने लगी, बहन, इतनी बड़ी बिल्ली तो मैंने कभी देखी ही नहीं थी। मेरा दिल खून के आंसू रो रहा था। हारिस मेरे साथ ही कमरे में दाखिल हो गया। उसकी भाभी कहने लगी, तुम दोनों थक गए हो, अब आराम कर लो। अगर चाय चाहिए तो मुझे बताओ, मैं बना कर दे जाऊंगी। क्योंकि रुबाब ने फ्लाइट में कुछ भी नहीं लिया था। हारिस ने मेरी तरफ देखा और भाभी से कहा, ठीक है भाभी, आप चाय बना दें। वैसे भी उनको मेडिसिन लेनी है तो कुछ ना कुछ चाय के साथ ले लेंगी। वो चाय बनाने चली गई। हारिस मेरे पास बैठ गया, मेरा हाथ पकड़कर कहा, कोई बात नहीं, तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है। कोई कुछ भी कहे, तुमने अपने दिल पर कोई बात नहीं लेनी। ये लोग आज हैं कल चले जाएंगे, तुम्हें मेरे साथ रहना है। मैं फिर से रोने लगी। वो खुद शर्मिंदा था। वो समझ रहा था कि शायद रूम डेकोरेट करने वाले से गलती हुई है, मगर मैं कुछ और सोच रही थी। फकीर पापा ने कहा था कि खुशी के साथ गम होगा और गम के साथ खुशी। थोड़ी देर में चाय आ गई। चाय के साथ 2-3 बिस्किट लेकर मैंने दवाई ले ली और फिर आराम करने के लिए हम दोनों लेट गए। मुझे शायद खौफ आ रहा था और मैं मुसलसल उस खिड़की की तरफ देख रही थी जहां से वो बिल्ली बाहर निकली थी। हारिस ने जब ये देखा तो उसने उठकर खिड़की पर मोटा भारी पर्दा डाल दिया और फिर कहने लगा कि डरने की जरूरत नहीं है, चलो मेरे बाजू पर सर रखकर सोने की कोशिश करो। मुझको भी थोड़ी तसल्ली हो गई। मैंने कुछ कुरानी आयातें पढ़कर खुद पर और हारिस पर दम किया और जाने कब मेरी आंख लग गई। सुबह हमारी आंख दरवाजा बज जाने पर खुली। 11 बज रहे थे। मुझे थोड़ी शर्मिंदगी हुई, मगर उसने कहा, कोई बात नहीं, रात को जितना हंगामा हुआ है कोई फर्क नहीं पड़ता अगर हमारी आंख नहीं खुली। वो एक संजीदा इंसान था और दूसरा, उससे गलत बातों पर फौरन रद्द अमल दे देता था। उसकी कजन जो दरवाजे बजाने आई थी वो वापस जा चुकी थी। मैं जैसे ही अपने कपड़े लेकर वॉशरूम गई फ्रेश होने के लिए तो कमरा मेरी चीखों से गूंज उठा, क्योंकि बाथ टब में उधड़ा हुआ गोश्त पड़ा था जो बिल्कुल ताज़ा था और हर तरफ खून ही खून फैला हुआ था। हारिस मेरी आवाज़ सुनकर जब वॉशरूम में पहुंचा तो वो भी ये मंजर देखकर हैरत से जम गया। शोर सुनकर उसकी भाभी अम्मी भी कमरे में आ गई। उन दोनों की भी खौफ से बुरी हालत हो गई और मुलाजिमों को बुलाया गया। वो भी डर रहे थे क्योंकि बंद कमरे में इस तरह कार्रवाई किसी भी तरह जस्टिफाई नहीं हो रही थी। अब रिश्तेदार औरतों ने खुलकर कहना शुरू कर दिया कि जरूर दुल्हन के साथ कोई मसला है। जब से ये आई है तब से कोई ना कोई अनहोनी हो रही है। बेटा, तुम्हारे साथ कोई असीबी चक्कर तो नहीं? ये क्या मामलात हैं जो कल से मुसलसल हो रहे हैं? मेरी सास सर पकड़कर सोफे पर बैठ गई। मुलाजिमों ने सारा वॉशरूम धो दिया। मेरे ससुर तक भी ये खबर पहुंच गई तो वो भी कमरे में आ गए। मैं सबसे बहुत शर्मिंदा थी, हालांकि मेरी कोई गलती भी नहीं थी। मेरे ससुर ने मेरे सर पर हाथ रखकर मुझे तसल्ली दी और कहने लगे, बेटा परेशान मत हो, मैं किसी को बुलवाता हूँ और इस मसले का हल ढूंढता हूँ। ये सब क्यों हो रहा है? इतने में बड़ी भाभी कहने लगी, पापा मेरी दोस्त के एक जानने वाले हैं जो पढ़ाई वगैरह करते हैं, आप बोलें तो मैं उनको फ़ोन कर दूं? पापा ने कहा, ठीक है बेटा कर दो, उन्हें कहना कि वो ज़रा जल्दी आए। हारिस चुप खड़ा था। फिर वो मेरा हाथ पकड़कर बराबर वाले कमरे में ले गया। ये कमरा बिल्कुल फर्निश था। उसने मुझे सोफे पर बिठाया और खुद जाकर अच्छी तरह वॉशरूम चेक किया और फिर कहने लगा, चलो अब फ्रेश हो जाओ, मैं तब तक यहीं बैठता हूँ। मैं खौफ से कांप रही थी तो उसने मेरा हाथ पकड़ा, मुझे वॉशरूम तक छोड़ा और कहने लगा, बिल्कुल भी डरो मत, मैं तुम्हारे साथ हूँ, सब ठीक हो जाएगा। मुझे कुछ हौसला हुआ। मैंने कहा, ठीक है आप बैठ जाए। शावर में गर्म पानी आ रहा था। मैंने शावर लेकर फौरन वुजू किया। हल्का बीच कलर का सूट था। मैंने अपना दुपट्टा नमाज की तरह लपेट कर बाथरूम में छोड़ दिया। मैंने बाहर आकर हारिस से कहा, मुझे जाए नमाज चाहिए और कुरान शरीफ भी। उसने खुशी से मेरी तरफ देखा और फौरन कबर्ड में से जाए नमाज निकाली और फिर कुरान मजीद निकाल कर ड्रेसिंग पर रख दी। कबर्ड में उसी के कपड़े मौजूद थे। वो भी फ्रेश होने चला गया। मैंने पहले हाजत के नफल पढ़े
اور پھر رو رو کر اللہ سے دعا کی کہ یا اللہ، یہ جو بھی امتحان ہے میں نہیں جانتی، مگر میری حفاظت فرما، میں تیری بہت کمزور بندی ہوں۔ دعا ختم کر کے میں نے قرآن شریف کھولا اور سورہ یاسین کو آواز کے ساتھ تلاوت کرنا شروع کر دیا۔ دروازے پر دستک ہوئی تو میں نے کہا اندر آ جائیں۔ دروازے میں میری ساس تھی اور حارث کی ایک کزن، جس نے ناشتے کی ٹرے اٹھا رکھی تھی۔ میں نے رک کر ان کی طرف دیکھا۔ کزن نے ناشتہ ٹیبل پر رکھ دیا۔ امی نے اسے کہا کہ تم جاؤ، میں تھوڑی دیر میں آتی ہوں۔ میری ساس نے میرے سر پر ہاتھ پھیرا اور کہنے لگی، بیٹا، میری کوئی بیٹی نہیں ہے، تم سے پہلی بہو بھی مجھے اتنی ہی پیاری ہے اور اب تم بھی، لیکن بیٹا تمہیں بھی مجھے اپنی ماں سمجھنا ہوگا، اور مجھے سچ سچ بتاؤ کہ شادی سے پہلے کیا تمہارے ساتھ کوئی اثر یہ آصف کا چکر تھا؟ اگر تھا تو بتا دو تاکہ اس معاملے کا حل نکال سکیں۔ میں نے ان کا ہاتھ پکڑ کر اپنی آنکھوں سے لگایا اور کہا، امی میرے ساتھ کبھی کوئی معاملہ نہیں ہوا، مجھے خود سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ حارث بھی کمرے میں آ چکا تھا۔ اس نے لاڈ سے اپنی بائیں امی کے گلے میں ڈالی اور کہنے لگا، سارا پیار اپنی بہو کو ہی مت دے دیجئے، میں بھی آپ کا بیٹا ہوں۔ اس بات پر ہم تینوں ہنس پڑے اور اس کے کہنے پر میری ساس نے ناشتہ ہم دونوں کے ساتھ ہی کیا۔ پھر میری ساس نے کہا کہ جب تک ہم تمہیں نہ بلائیں تم کمرے میں ہی رہنا اور حارث تمہارے پاس رہے گا۔ وہ چلی گئیں۔ تھوڑی دیر میں پاپا نے حارث کو کال کر کے کہا کہ دلہن کو لے کر اپنے کمرے میں آ جاؤ، عامل صاحب آ گئے ہیں۔ مجھے یہ سن کر اور بھی گھبراہٹ ہونے لگی اور حارث میرا ہاتھ پکڑ کر مجھے اپنے بیڈ روم میں لے آیا۔ وہاں بھابھی، بھیا، امی اور پاپا اور ان کے ساتھ ایک عامل بھی تھا جو پورے کمرے میں گھوم گھوم کر کچھ پڑھ رہا تھا۔ اس کی بڑی بڑی آنکھوں میں سرما لگا ہوا تھا، ایک ہاتھ میں لکڑی کا موٹا سا ڈنڈا تھا جس میں گھنگرو بندھے ہوئے تھے۔ اس کے ساتھ اس کا ایک شاگرد بھی تھا جس نے ہاتھ میں کوئلوں کا چلم دان پکڑا ہوا تھا جس میں نہ جانے کیا چل رہا تھا، اور ہر طرف عجیب سی خوشبو پھیلی ہوئی تھی۔ جیسے ہی میں کمرے میں داخل ہوئی وہ عامل میرے چاروں طرف گھومنے لگا۔ میں نے حارث کا ہاتھ اور بھی مضبوطی سے پکڑ لیا۔ ایک دم سے عامل نے اپنی آنکھیں بند کی اور جیسے ہی اس نے پڑھائی شروع کی کمرے میں تیز قسم کی بدبو پھیلنا شروع ہو گئی۔ سارے گھر والے پریشان ہو گئے۔ عامل نے اپنی آنکھیں کھول دی اور کہنے لگا، اس لڑکی پر منحوس جنات کا سایہ ہے، اور آج سے نہیں بہت سالوں سے، اور اس لڑکی نے یہ ساری بات آپ سے چھپا کر رکھی۔ میں ایک دم غصے سے چیخ پڑی۔ میں نے کہا، کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ یہ بالکل جھوٹ ہے۔ اب سب گھر والے مجھے غیر یقینی سے دیکھنے لگے۔ عامل نے کچھ پڑھا اور ہاتھ پر پھونک مار کر میرے چہرے کے سامنے کر دیا۔ ایک دم سے مجھے یوں لگا کہ مجھے زوردار دھکا لگا ہو، لیکن پھر ایک دم سے میرے اندر سے روشنی نکلی جس کی وجہ سے عامل بری طرح لڑکھڑا کر پیچھے گرا۔ یہ سب کچھ گھر والے بھی دیکھ رہے تھے۔ میں نے گھبرا کر سورہ یاسین کی تلاوت شروع کر دی۔ اس کی آواز سن کر عامل نے اپنے کانوں پر ہاتھ رکھ لیے۔ اس کی آنکھیں غصے سے سرخ ہو گئیں۔ میں نے بہت سی آیات یاد رکھی تھی۔ ایک دم عجیب واقعہ ہوا۔ دیکھا کہ وہی بلی جو رات کھڑکی سے کود کر بھاگ گئی تھی ایک دم سے بیڈ کے نیچے سے نکلی۔ اس کے منہ میں تازہ گوشت کا ٹکڑا تھا۔ اس نے نہایت خوفناک آوازیں نکالنا شروع کر دی۔ مجھے کوئی ڈر نہیں لگ رہا تھا۔ میں نے تلاوت جاری رکھی۔ عامل نے اپنے ہاتھ جوڑ کر مجھے کہا، ہمیں جانے دو۔ میں نے اس کو ہاتھ کے اشارے سے وہاں سے جانے کو کہا۔ وہ بلی بھی شدید تکلیف میں تھی۔ گوشت کے ٹکڑے میں آگ لگ گئی۔ وہ بلی کھڑکی میں سے کود کر بھاگ گئی۔ میرے سسر چپ بیٹھے تھے۔ میری ساس نے یہ سب دیکھ کر چلا کر کہا کہ تم نے جھوٹ کیوں بولا؟ میں مسلسل تلاوت کر رہی تھی جب تک سورت ختم نہیں ہوئی۔ میں نے پورے کمرے پر دم کیا، خود پر دم کیا، حارث پر اور اس کے گھر والوں پر۔ جیسے ہی دم کرنا چاہا ایک دم سے بھابھی کی آنکھیں سرخ ہو گئیں اور چلا کر کہنے لگی، تم جتنا مرضی بچ لو رباب، مگر میں نے بھی ایسے عملیات کروائے ہیں، تم ساری عمر پچھتاؤ گی، مگر نجات کی کوئی صورت نہیں ملے گی۔ بھیا نے یہ بات سن کر بھابھی کو تھپڑ مارا۔ امی نے پریشان ہو کر اس کی طرف دیکھا۔ پاپا بھیا کا ہاتھ پکڑ لیا اور کہنے لگے کہ کامران یہ کیا کر رہے ہو؟ حارث بے یقینی سے اپنی بھابھی کو دیکھ رہا تھا۔ بھابھی نے چیخ کر کہا، ہاں کروائے ہیں میں نے اس پر عملیات۔ میں 5 سال سے آپ لوگوں کی خدمت کر رہی ہوں، اور جب حارث کا رشتہ کرنے کی باری آئی میرے منع کرنے کے باوجود آپ اس غیر لڑکی کو بیاہنے چلے گئے۔ میری بہن میں کیا کمی تھی؟ وہ بچپن سے اس گھر کی بہو بننے کے خواب دیکھ رہی تھی اور آپ نے یہ صلہ دیا۔ امی نے افسوس سے بھابھی کی طرف دیکھا، کہنے لگی، نمرا افسوس، تم میرے بھائی کی بیٹی ہو، تمہاری بہن سارا میری بیٹیوں کی طرح ہے۔ بھائی کے گزر جانے کے بعد تمہیں کس چیز کی کمی دیکھنے کو ملی؟ اور زندگی حارث کی ہے، جب وہی راضی نہیں تو میں زبردستی سارا کو اپنی بہو کیسے بنا سکتی ہوں؟ ساری بات کھل گئی تھی۔
भाभी पागलों की तरह हंस रही थी और फिर कहने लगी, आप लोग जानते थे कि मैं कभी माँ नहीं बन सकती। अगर इस घर में मेरी दूसरी बहन आ जाती तो मैं उसकी औलाद को लेकर ममता को ठंडा कर सकती थी, मगर आप तो इस बाहर वाली को ले आए। मेरी बात याद रखिएगा, ये भी कभी माँ नहीं बन सकेगी। मैंने इसके ऊपर ऐसे अमल करवा दिए हैं कि कभी भी जीते जागते बच्चे को जन्म नहीं दे सकेगी। अगर आप लोगों को इस घर में बच्चे चाहिए होंगे तो सारा ही यहाँ की बहू बन के आएगी। अम्मी का गुस्से से बुरा हाल था और भैया का बस नहीं चल रहा था कि वो भाभी की जान ले लें। हारिस दुख से भाभी की तरफ देख रहा था। वो उसके पास जाकर उनका हाथ पकड़कर बोला, भाभी एक बार बोल कर तो देखती। मैंने आपको भाभी नहीं अपनी माँ के बराबर समझा था। मुझे रुबाब पसंद आ गई थी, मगर मैं नहीं जानता था कि आप क्या सोचे बैठी हैं। मैं तो यहाँ रहता भी नहीं हूँ। मुझसे बात तो की होती। आप कहती थी कि मैं आपके बेटे की जगह हूँ। बचपन से आपको इस घर में देख रहा हूँ, पहले बड़ी बहन की जगह, फिर भाभी। मुझ पर जरा सा भी यकीन नहीं था आपको। बहुत गलत किया आपने। रह गई बात बे औलादी की, तो ठीक है, मुझे मेरे अल्लाह पर यकीन है कि वो मुझे औलाद जरूर देगा। और मैं वादा करता हूँ कि अगर आपने अपना दिल बदल लिया तो मेरी औलाद आपकी गोद में ही पलेगी, बढ़ेगी और अपनी माँ से बढ़कर दर्जा देगी। भाभी अब खामोशी से हारिस की तरफ देख रही थी। फिर वो दौड़कर कमरे से निकल गई। अम्मी ने मेरे हाथ पे हाथ रखा, मुझे तसल्ली दी और कहने लगी, बेटा मैं ही पहचान नहीं पाई, पीतल को सोना समझती रही। तुम इस घर की बहू नहीं बेटी हो। हम हर हाल में तुम्हारा साथ देंगे। पापा ने भी मेरा हौसला बढ़ाया। भैया ने हाथ जोड़कर मुझसे अपनी बीवी के किए की माफी मांगी तो मैंने उनके हाथ पकड़ लिए और कहा, ऐसा मत करें, भाभी को इलाज की जरूरत है, उनको बुरी सोहबत से दूर रखें। औलाद देना ना देना अल्लाह के इख्तियार में है, कोई बंदा इसमें कुछ भी नहीं कर सकता। और मेरी दुआ है कि अल्लाह आप दोनों की गोद भर दे। भैया की आंखों में आंसू आ गए, वो भी कमरे से चले गए। हारिस ने आगे बढ़कर मुझे गले से लगा लिया। वक्त बहुत तेजी से गुजरा। देखते ही देखते 7 साल गुजर गए। मैंने हर डॉक्टर आजमा लिया। हम दोनों की रिपोर्ट्स बिल्कुल सही थी, मगर कोई खुशखबरी नहीं मिली। मैं टूटती तो मुझे हारिस संभाल लेता, वो भी टूटता तो मैं उसको संभाल लेती। उसने दुबई की नौकरी छोड़ दी थी और यहाँ पाकिस्तान में ही कभी कोई नौकरी करता, कभी कोई नौकरी करता। मैं जब भी बाहर जाती तो लाशौरी तौर पर उसी फकीर बाबा की तलाश में रहती। कई बार मुझे वहम होता कि मैंने उनको कहीं देखा है। हर बार मुझे कोई ना कोई इशारा मिलता। कभी कोई बच्चा मुझे ये कहकर जाता, दुखी रात लंबी होती है मगर सुख का सवेरा जरूर होगा। कभी कहीं कोई पर्ची रखी हुई मिलती कि हर दुख की एक एक्सपायरी डेट होती है। बस देखा ये जा रहा है कि तुम्हारे सब्र की हद क्या है। मैं इतनी तकलीफ में भी मुस्कुरा देती। मैं दुनिया से दिल मोड़कर सिर्फ और सिर्फ अल्लाह से दिल लगा चुकी थी। अब मुझे आहिस्ता आहिस्ता सब्र आना शुरू हो गया था। मैं दुआ को हाथ उठाती तो बेख्तियार रोती रहती, मगर कोई शिकवे का हर्फ मेरी जबान पर नहीं आता। भाभी की हरकतें दिन ब दिन पागलों वाली होती जा रही थी। घर के सब अफराद उससे तंग थे मगर मजबूर थे। उनकी बहन का भी बड़ी मुश्किल से रिश्ता हुआ था। माँ बेवा थी, उनको भेजते भी तो कहाँ भेजते। और हारिस ने सबसे तंग आकर अपना अलग घर ले लिया था और उसने घर मरी में लिया था। जब पहली बार मैं जाकर घर के दरवाजे पर पहुंची तो मेरी नज़र चारों तरफ गई। ये वही पहाड़ी इलाका था जो मुझे नजर आता था ख्वाब में। मैंने फिर अल्लाह से दुआ की, या अल्लाह तेरा वादा है कि हर मुश्किल के साथ आसानी है। हमें वहाँ रहते हुए 4 माह का अरसा हो गया था। एक दिन मेरी तलाश खत्म हो गई। शाम को अंधेरा फैल रहा था। मैं घर के बाहर कुर्सी पर बैठी थी। उधर मगरिब की अजान होना शुरू हुई और साथ में मेरे कानों में भेड़ बकरियों के बोलने की आवाज़ आना शुरू हो गई। मैंने एक तरफ देखा तो गुबार उठ रहा था। मेरे दिल में न जाने क्या आई कि मैं पगडंडी पर जाकर खड़ी हो गई। भेड़ बकरियां आसपास से गुजर कर जा रही थी, लेकिन मेरी नज़र उस बूढ़े इंसान पर थी जो उनके पीछे चला रहा था। 8 बरस होने वाले थे, मगर मैं उस बुजुर्ग को नहीं भूल सकी थी। वो करीब आकर रुक गया और कहने लगा, खुशी के बाद गम है, हर गम के बाद खुशी है। तेरे दुख की एक्सपायरी डेट आ गई है। लड़की, बता भूखे को क्या खिलाएगी। मेरी आंखों में खुशी के आंसू थे। मैं दौड़कर घर में अंदर चली गई और खाना हमेशा मगरिब की नमाज से पहले ही बना कर रख लेती थी। मैंने ट्रे में खाना सजाया और दौड़कर बाहर आ गई। बाबा उन्हीं कुर्सियों पर बैठे थे जहां कुछ देर पहले मैं बैठी थी। मैंने जैसे ही खाना रखा, बाबा ने खाना शुरू कर दिया और कहने लगे, बोल क्या मांगती है। उन्हें अल्लाह की मखलूक का भला क्या, अल्लाह तेरा भला करेगा, मगर याद रखना, पता मत बदल देना, हिदायत मत भूल जाना।
जब उसका हुक्म हुआ उसकी रजा पर राजी रहना, अगर वो कोई इशारा दे तो अपनी अकल के घोड़े मत दौड़ाना। उनकी बातें सीधी मेरे दिल पर लग रही थी। मैं मुसलसल रो रही थी। मैंने कहा, बाबा मैं अपने इम्तिहान में कामयाब हो जाऊं, अल्लाह से दुआ करना, अगर वो देगा तो उसकी शुक्र गुजार रहूंगी, और अगर मेरे नसीब में नहीं है तो सब्र करूंगी। बाबा ने खाना खा के दोनों हाथ फैलाकर आंखें बंद कर ली। काफी देर बाद दुआ मांगकर मुस्कुराकर मेरी तरफ देखा और अपना एक हाथ मेरी तरफ बढ़ाया। उसमें कटोरा भर दूध था। कहने लगे, झल्ली चुप हो जा, तेरी दुआ बड़ी लाडली है, अर्श वाले ने सुन ली है, मगर याद रखना कि पता मत बदल देना। वो अपनी मौजज़ुबाना लय में ये कहते हुए उठकर खड़े हो गए। वो दरवाजे से निकल रहे थे। हारिस अंदर आ रहा था। वो बोलते जा रहे थे, पता मत बदल लेना, अल्लाहू अल्लाहू कहकर भला हो भला हो। हारिस ने उनको सलाम किया तो उन्होंने नारा मारकर सलाम का जवाब दिया और एक तरफ अंधेरे में गुम हो गए। मैं वहीं पत्थर की तरह खड़ी थी। मेरी आंखों से आंसू टपक रहे थे। हारिस ने अंदर आकर मेरा कंधा हिलाया। मैंने वो दूध उसकी तरफ बढ़ाया और कहा, आधा आप पी लें, आधा मुझको दे दें। उसने बात को समझ लिया था। दिन तेजी से गुजरे। अभी 1.5 माह ही हुआ था कि मेरी तबीयत खराब हो गई। जब हम दोनों डॉक्टर के पास गए तो उसने वो खुशखबरी सुना दी जिसका हम दोनों पे यकीन था। वक्त तेजी से गुजरने लगा। जब भी मेरी तबीयत खराब होने लगती तो मैं तिलावत करती और दुआ मांगती, यार अब तेरे सिवा कोई मददगार नहीं। इसी तरह 7 माह हो गए। हारिस का काम भी अच्छा चल रहा था। वो शाम को जल्दी घर आता। सुबह से ही मुझे बहुत तकलीफ हो रही थी। मैंने अपनी अम्मी और सास से पूछा तो उन्होंने कहा, इन दिनों में हो जाता है ऐसा, और फिर भी डॉक्टर से ज़रूर मुआयना करवा लेना। हम दोनों जब डॉक्टर के लिए निकले तो मौसम ख़राब हुआ और बर्फ़ पड़ने लगी। हॉस्पिटल हमसे काफ़ी दूर शहर में था और हम काफ़ी ऊपर पहाड़ी हिस्से में रहते थे। मैंने हारिस को कहा कि वापस चलो। उसने मुझे समझाया कि पागल कुछ भी हो सकता है, हम कोशिश करते हैं कि एक दफ़ा शहर पहुंच जाए, मगर मैंने उसको मजबूर कर दिया वापस जाने पर। अभी हम आधे रास्ते पर ही पहुंचे थे कि एकदम तेज यालाबारी होना शुरू हो गई। बर्फ पूरी तरह गाड़ी के शीशे को ढक रही थी। एकदम से मुझे लगा कि तकलीफ अब मुझसे बर्दाश्त नहीं होगी। हालत देखकर हारिस बाहर भागा, करीब कोई घर हो तो मदद मिल जाए। एकदम से 4-5 लोगों के बोलने की आवाज़ आई। ये लोग मुकामी थे। उन्होंने कहा, यहाँ करीब ही एक डिस्पेंसरी है जिस पर लेडी डॉक्टर भी है और बाकी इंतज़ाम भी आसानी से हो जाता है। करीबी किसी घर से फौरन चारपाई लेकर वो लोग मुझे पैदल रास्ते से ही डिस्पेंसरी ले गए। वो बहुत अजीब जगह थी, छोटी सी मगर पुरसुकून। वहाँ काम करने वाले सभी लोग लंबे लंबे कद के थे। नर्स, डॉक्टर और स्टाफ ने अपने चेहरों पर मास्क लगा रखे थे। फौरन वार्ड बॉय स्ट्रेचर लेकर आ गए। मुझे फौरन इमरजेंसी में ले जाया गया। 2 लेडी डॉक्टर और नर्सेज मेरे साथ थी। मुझे महसूस भी नहीं हुआ इतनी जल्दी एक नन्ही जान इस दुनिया में आ गई। नर्स और डॉक्टर बहुत खुश थी। उन्होंने मुझे मुबारकबाद दी। मेरी बच्ची को टावल में लपेटकर उसके बाप की गोद में ले जाकर दे दिया। मुझे वार्ड में शिफ्ट कर दिया। हैरत की बात यह थी कि वहाँ पर खामोशी बहुत ज़्यादा थी। मेरा दिल कह रहा था कि ये हॉस्पिटल इंसानों का नहीं है और ना यहाँ काम करने वाले इंसान हैं। मुझे वहाँ थोड़ी देर गुजरी थी कि मैंने आवाज़ सुनी, याद रखना कि पता नहीं बदलना। मेरी आंखों में खुशी के आंसू आ गए। हारिस मेरी बेटी को लेकर कमरे में आ गया। थोड़ी देर में ही वहाँ पर एक शख्स आया और कहने लगा, आप हमारे मेहमान हैं। बच्चा हमारे इलाके में पैदा हुआ है और हम चाहते हैं कि इसके कान में पहली आवाज़ हमारी जाए। हारिस ने हैरत से मेरी तरफ देखा। मैंने गर्दन हिला दी। उस शख्स का लिबास बिल्कुल सफ़ेद था, बिल्कुल सफ़ेद दाढ़ी और बड़ी बड़ी खूबसूरत आंखें। उसने बच्ची को लेकर पहले तो उसके माथे पर प्यार किया और फिर उसके कान में आज़ान दी। मैं एहसानमंदी से उस शख्स की तरफ देख रही थी। हारिस भी बहुत खुश था। उस शख्स ने जेब से निकालकर एक खूबसूरत लॉकेट हारिस को दे दिया और कहा, जब ये बच्ची 14 साल की हो जाए तब ये अमानत इस बच्ची को दे देना, और याद रखना कि ये बच्ची कोई मामूली बच्ची नहीं होगी। इसके जिम्मे कुदरत ने कुछ काम रखे हैं। तुम दोनों मियाँ बीवी बस अपना फर्ज पूरा करना, बाकी सब कुछ अल्लाह पर छोड़ देना। हारिस एक ट्रांस की हालत में खड़ा उस शख्स की बातें सुन रहा था। उसने आकर मेरे सर पर अपना हाथ फेरा और कहने लगा, बेटी याद रखना कि भला हो भला। मैंने अचानक से उसकी तरफ देखा। अरे ये तो वही फकीर बाबा थे। वो मेरी तरफ देखकर मुस्कुराए और एकदम गायब हो गए। हारिस ने भी उनका गायब होना देखा। अगले दिन मेरी तबीयत काफ़ी बेहतर हो गई। वहाँ से 2 लोग हमें गाड़ी तक छोड़ने आए और फिर वापस चले गए।
हम दोनों अपनी बेटी को लेकर खुशी खुशी अपने घर की तरफ चल पड़े। जब हमने उस जगह को देखा जहां रात वो डिस्पेंसरी थी, तो वहां पर अब कुछ भी नहीं था। हारिस ने मेरी तरफ देखकर कहा, मुझे आज तक यकीन नहीं था कि जिन्नात होते हैं, मगर जब से तुम मेरी जिंदगी में आई हो, कदम कदम पर मैं हैरत से आश्कार हूँ, और मैं अपने आप को खुश नसीब समझता हूँ कि तुम्हारे साथ नेक लोग जुड़े हुए हैं। मैं भी मुस्कुरा दी। मेरी बेटी के कान में तो आजान ही जिनजादे ने दी थी। अब देखते हैं कि जब ये 14 साल की होगी तो फिर इसकी जिंदगी में क्या होता है। वक्त तेजी से गुजर रहा था। आज मेरी बेटी की 14वीं सालगिरह थी। चांद की भी पूरी 14 तारीख थी, और एक माँ और बाप डर भी रहे थे कि जाने आज क्या होने वाला है। एकदम से दरवाजे पर दस्तक हुई। हारिस ने जाकर दरवाजा खोला और हैरत में डूबी हुई उसकी आवाज सुनाई दी, आप लोग। मैंने जल्दी जल्दी जाकर दरवाजे पर बाहर खड़े हुए लोगों को देखा। वहां बहुत सारे जिन्नात खड़े थे, जिनके हाथों में बहुत ज्यादा खूबसूरत तोहफे थे। हम दोनों ने रास्ता छोड़ दिया। वो सब घर में आ गए। हम मियाँ बीवी एक दूसरे की तरफ देख रहे थे। एक दूसरे से आंखों ही आंखों में पूछा कि अब क्या होने वाला है। क्या ये जिन्नात हमारी बेटी को अपने साथ ले जाने आए हैं, या फिर कुछ और होने वाला है। क्या हमारी बेटी भी तो जिनसाती नहीं, या फिर अल्लाह ताला के इसके जिम्मे कोई काम लगाना चाहता है, जिसके लिए उसने इस नेक जिन्नात को यहाँ भेजा है। आगे क्या होने जा रहा है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। दोस्तों, अगर आपको आज की हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक कीजिए और इसे अपने प्यारों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए, ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो आपको बर वक्त मिल सके। अल्लाह हाफिज।